Okay, Abdurrahman, we are starting now, ठीक है? Abdurrahman, today we are going to discuss about the exercise 5D, and in exercise 5D we are basically going to discover how can we find the determinant and how can we find the inverse of the matrix, ठीक है? But before this we must know the सर हाँ सर आपकी आवाज ना थोड़ी मतलब फट फट के आ रही, सही तरीके से आ नहीं रही। मेरी आपके पास सही तरीके से आ रही? हाँ मुझे तो हमारी बिल्कुल आवाज़ सही से आ रही है। अच्छा चलो, आपकी ना मतलब थोड़ी कम फट फट के सर। अच्छा देखो, in this exercise 5D we need to cover the determinant of the matrix, the inverse of the matrix, but before this we know the condition about the inverse of the matrix, that which matrix should be in, मतलब how can you take the inverse of the matrix, and how if what is the possibility of any matrix that you can take the inverse of that particular matrix. So the condition of matrix is that the matrix determinant must not be equal to zero. हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब हम इन्वर्स लेते हैं तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? सो in order to find the inverse, first of all we need to find the determinant. If the determinant is equal to 0, it means no inverse is possible here. If the determinant is not equal to 0, either positive value, either negative value, so matrix inverse is possible here. So select any one question from question number 1. Select any one part from question number 1. Up to now. एक सेकंड सर 5 5. Okay. -8, -4, -4, 2. यस Question number 5. Question number 1. Part 5. And the value is -8 -4 -8, -8 -4 -4. आगे -4 -2 -4 नीचे -2. फिर -2 -8, -4, -4, -2. Okay guys, चलो. Now first of all we need to find the determinant of this matrix, and in order to determinant of this matrix we know that we need to multiply the elements of the diagonal, and first of all we need to multiply the elements of the top left diagonal. So -8 multiplied by -2, -4 similarly -4 multiplied by हाँ -4. माइनस। सर ये ठीक है, चीज पूछनी है बोलो. सर, ये क्रॉस में क्या हो रहा है आपस में? क्रॉस बेसिकली इसको प्योरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे अब्दुल रहमान. बेसिकली वी जी आर मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल. एलिमेंट्स हाँ ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल. अब टॉप लेफ्ट द जी डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैव टू डायगोनल, -8 -2 जी have two elements, -8 -2. The diagonal starting ओके from the top right has two elements, that is -4 -4. So we need to multiply हम्म the elements of the diagonal and then we need to subtract it. So -8 -2 equals to +16, and हम्म -4 -4 equals to +16, and 16 -16 हम्म, equal to 0. So the problem is that ये the determinant of this matrix is 0, so we cannot take inverse of this matrix. हम्म Okay? हम्म, Now you need to select any other part. अ, Question number part 4. 5 8 हाँ ओके पार्ट 4 Part 4. क्वेश्चन Okay? नंबर 1 पार्ट 4 Question number 1 part 4. 3, 10, 2, 7. ओके सही। Question आपको number 1. आंसर बताओ, हाँ मुझे लगा आंसर उसका करके दो पहले क्वेश्चन बताओ उसका. नहीं मैं सॉल्व करवाऊंगा ना. सर अच्छे से। 3 10 2 7 3, 10, 2, 7. 3, 10, 2, 7. ठीक है. Okay. First of all we need to find the determinant. So determinant can be taken by multiplying the elements of diagonal and then subtract it. अच्छा So हाँ बोलो. नहीं नहीं 3 कुछ नहीं, is आगे to समझ। 7, 10 is to 2, 2 equals to 3 7s are 21, minus 21 10 2s are माइनस 20, 12 equals to 1. ठीक है.
हम्म, Now this matrix is not singular because the determinant of the matrix is not equal to 0. Now we need to find the adjoint. Acha, Abdurrahman, when we find the adjoint, when we need to take out the adjoint of any matrix, the element of the top left diagonal interchange their position. Interchange their position means the position where 3 is written now will be, we need to write 7 there. Like here we can see 3, here we can see 7. Now we need to interchange their position like this. 7 will take the position of 3 and 3 will take the position of 7. 7, हाँ ऊपर 7 आ जाएगा टॉप लेफ्ट पे, राइट पर टॉप पर 2 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा No, 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 no. And top right ना. diagonal, we need to change the sign of the element. Matlab, if we have the positive 10, it would become negative 10. It ओके, would become -10 और negative -2. 2. Okay? सही. Now we need to और ये find the inverse of the matrix, and the formula for inverse of the matrix is 1 upon determinant of A, and the value of determinant equals to 1 right now, so we need to write 1 there, and 7 minus 10 minus 2 and 3. And when we divide this one through the whole element of the matrix, so it would become, it can be written like this: 7 minus 10 minus 2 and positive 3, and this is your answer. Okay, but keep this thing in your mind that it is not necessary that determinant must always be equal to 1. It can be 2, it can be minus 2, it can be any value. Okay, but matrix inverse is not possible when the determinant is 0. Got it? सर यहाँ मैं थोड़ा समझा नहीं. कौन सा वाला पॉइंट? जो ये चीज, वो एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये मार्क कर देता हूँ. इसके बाद से मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आया मुझे. सी. अच्छा, ये फॉर्मूला है बेसिकली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हम एडजॉइंट को डिवाइड करवा देते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऊपर लिखा हुआ होगा फॉर्मूला. नहीं लिखा हुआ, चलो फिर भी बता देता हूँ. ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा. एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय mod of a. mod of a मतलब determinant of a. So basically हमने adjoint of a की values को determinant से divide करवा दिया. You can write it like this or you can write it like this. Both is correct. मैं तुम्हें recommend करूँगा कि तुम ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर, तुम्हारी समझ में आ जाएगा. सही है. ए नीचे ए नीचे अपॉन Adjoint ए of a ब्रैकेट. in which we interchange the position and change the sign, and determinant of a in which we subtract the elements of the product of the diagonal. ठीक है, ओके. अब समझ आएगा? जी जी. Question number 2 and question number 3 both are quite similar, but I will do it orally for you. If P equals to 7934 and Q equals to 4 minus 9 minus 37, find PQ and QP. First of all, you need to multiply P by Q and then Q by P. मतलब P को Q से मल्टीप्लाई करवाना है और Q को P से मल्टीप्लाई करना है. तो आई बिलीव इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आती है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लोगे? सर सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसमें. अरे सर आपका सर है. क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. मुझे अस्सलाम P वालेकुम. मल्टीप्लाई बाय Q और Q मल्टीप्लाई बाय P लिखा वालेकुम है. ठीक है, डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q. अब P के एलिमेंट्स को देखो, Q के एलिमेंट्स को देखो एंड चेक आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q. चलो उसके लिए पहले तुम P Q और QP को मल्टीप्लाई करवा लो और फिर आंसर देखो क्या है. लेकिन एक चीज समझ लो बेटा, ये खुद कर लोगे या मैं करवाऊं? जल्दी बताओ अब्दुल रहमान. कौन सा अब्दुल? क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई एक पार्ट. सर क्वेश्चन नंबर 3 करवाएं. क्वेश्चन नंबर 3, P मल्टीप्लाई बाय Q. P की वैल्यू बराबर है 7934
सर आपकी तरफ सही हम है भी कैसी 14 अगस्त मना रहे हैं। बेटा ये डबल रोटी अंडे वाला है। अच्छा अब्दुलरहमान वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, ठीक है। शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, चलो स्टार्ट करो अब्दुलरहमान, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। पहला सब पहले कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 4 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 28। आगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 27। 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 माइनस 63 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 63। आगे जल्दी से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय नहीं ना माइनस सर 3 मल्टीप्लाई बाय नहीं होगा। बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो इफ 3 इज मल्टीप्लाइड तो बाय 4, नाउ 4 शुड बी मल्टीप्लाइड अच्छा बाय माइनस 3। आगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 क्यों? सर ये फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी रो से करेंगे ना अब। दूसरी कॉलम से। अच्छा दूसरे कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई माइनस 9 एक मिनट, हाँ सही है, बोलो। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 माइनस 27 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। So the answer can be written as 1 0 0 1। जब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो बेटा एक चीज हमने वहां पढ़ी थी, when we multiply a matrix by its inverse, the answer should be 1, and in matrix the 1 can be written as identity matrix. As we have got the identity matrix 1 0 0 1, identity matrix is a matrix in which all the diagonal must be equal to 0. So in this scenario we can say that matrix P and matrix Q are inverse to each other. जब तुम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। ये बात अपने जहन में बिठा लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आंसर आया, इसका मतलब P और Q एक दूसरे के इन्वर्स के बराबर। अब इसी तरीके से तुम लोगों ने पहले Q को रखकर और बाद में P को रखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। कर लोगे इसको, होमवर्क कंसिडर कर लें इंशाल्लाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, select any one part, find the inverse of the following matrices where possible। आपने इनवर्स मालूम करना है, इनमें से किसी भी एक पार्ट को, एक पार्ट सेलेक्ट कर लो जल्दी से। डी बी, चलो बी कर लो, लेकिन बी बहुत इजी, चलो ठीक है। डी 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 के रोज के नीचे cos x minus sin x। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। cos x minus sin x and cos x। So we need to find the inverse of this matrix, but before this we first find the determinant of this matrix, and determinant can be find out by multiplication of the diagonal Matrix. elements of the diagonal, ठीक है। So it can तो be cos written x को as cos x multiply multiply by by cos x माइनस sin x minus sin x multiply by sin x, ठीक है। So it can be further written as cos x into cos x बराबर हो जाएगा cos square of x के माइनस इंटू माइनस प्लस एंड साइन स्क्वायर एक्स साइन इंटू साइन एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा बराबर होता है 1 के। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा बराबर होता है 1 के। सो इट मींस this is not a singular matrix because the value of determinant is not equal to 0, so we can find the inverse।
एन इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, एडजॉइंट मालूम करते थे। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, while we taking the adjoint, the elements of the top left diagonal interchange their position. So how can we write it? सर ये cos, पहले cos रहेगा, cos ठीक है x और cos x तो सेम रहेंगे क्योंकि दोनों जगह हमारे पास cos x मौजूद है। सर, और ये प्लस का sin x हो जहाँ जाएगा नेगेटिव और साइन इधर एक्स भी। है वहाँ पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव साइन एक्स है वहाँ नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा। सो वी हैव फाउंड द एडजॉइंट, नाउ वी नीड टू फाइंड द matrix inverse, and matrix inverse can be found by dividing the adjoint of A by determinant of A. So we have the value of adjoint of A, that is cos x sin x minus sin x cos x, and what is the value of the determinant? The value of the determinant of this matrix is 1. So we need to divide all the elements of the numerator's matrix by 1. आपने न्यूमरेटर जो मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है इसकी तमाम वैल्यूज को आपने 1 से डिवाइड करना है। अगर कुछ और डिटर्मिनेंट होता लाइक 2 3 4 5, so then you need to divide the above values by that particular value। ये चीज समझ में आई? So this is the method of inverse। कोई परेशानी? तो सर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, cos x upon 1 sin डिवाइड, x upon 1 minus sin x upon 1 cos x upon 1। if you have any other ये value तो of the एज इट इज आ जाएगा। determinant like 2 like 3, तो cos x upon 2 sin x upon 2 minus sin x upon 2, so it depends on the value of the determinant। ठीक है बेटा, समझ आया ये? हाँ आगे बढ़ो। अब्दुल रहमान, सुहेल। हाँ आ गया आगे। Question number 5. Given that A equals to 2435 and B equals to 2436, calculate determinant of A and determinant of B। आपने A का determinant निकालना है, B का determinant निकालना है, and then find the inverse of matrix A and B where possible। In next step you need to find the inverse of matrix A and B। So I think ये करवाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी कर लोगी because you know how to take the inverse of a matrix। ठीक है? सर ये क्वेश्चन 4 में मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। अब जैसे ये जी है, इसमें 3 जगह पे 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो अब determinant इसको जीरो वो के कर बराबर सकते हैं, ये होगा, तो नहीं हो। इसका determinant जीरो होगा। अच्छा, सही, ठीक है। Now question number 6. Given that the determinant of the matrix 2a minus 4 minus 1 5 is 16. Find the value of a, hence write down the inverse of the matrix। आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, जरा मुझे वैल्यू लिखवाना है इस मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 6। 2a, पहली रो में सर 2a माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 5। 5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है the determinant of this matrix is 16। So how can we find the determinant of any matrix? We multiply the diagonal elements of the diagonal of the matrix and then we subtract it। So 2a should be multiplied by मल्टीप्लाई बाय 5 5 and minus 4 should be multiplied by माइनस minus 1, and the value of determinant equals to 16 as mentioned in the question। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, the determinant of this matrix equals to 16। So further we can write it as 2a multiplied by 5 equals to 10a। ठीक है? भाई अलार्म बंद करो। minus 4 multiplied by minus 1 plus 4 equals to 16। क्लास क्यों नहीं दे रहे? ठीक है? 10a equals to 16 plus 4। So a equals to 20 divided by 10 equals to 2। So the value of a equals to 2। So now we can write the above matrix as
2 by 2, because the value of A is 2, minus 4, minus 1 and 5, and it can be further written as 2 2s are 4, minus 4, minus 1 and 5. सर ये -4 पॉजिटिव का क्यों नहीं हुआ? कौन सा माइनस 4? बेटा अभी मैंने इसका एडजॉइंट नहीं लिया, एडजॉइंट मैं अब लूंगा इसका. राइट नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि जब तक ए की वैल्यू पुट नहीं करवाओगे एडजॉइंट नहीं ले सकते. अब एडजॉइंट लेंगे हम लोग इसका. एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 4 1 4. ठीक है, सर इसको डिवाइड बाय 16 करेंगे डिवाइड या बाय 2? 2 करेंगे, डिवाइड बाय 16 करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास. हम हमेशा इन है ना डिटर्मिनेंट क्वेश्चन की, में. हाँ हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करते हैं. तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे. 5 4 1 4 डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, और फिर ये फर्दर बन जाएगा कुछ इस तरीके से 5/16, 4/16, 1/16 and 4/16. And if you need to simplify it, it can be further written as 5/16, 1/4, 1/4, 1/16 and 1/4. 4/16 का मतलब 1/4 होता है. यहाँ तक कोई मसला बेटा? सर ये पेपर में यहाँ तक लिखना होगा? हाँ बेटा, जहाँ तक सवाल में पूछा गया आपने वहाँ तक लिखना है. Now moving towards question number 7. 7, 8, 9 और 10 एग्जैक्टली एक जैसे क्वेश्चंस हैं. कोई एक डिसाइड कर लो. सेवन 8 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं. कोई एक क्वेश्चन डिसाइड कर लो. सर 9 करवा. Okay. Given that A equals to 3 1 2 1 and P equals to 2 5 minus 1 minus 3, write down the inverse of matrix A. Use your result to find the matrices P and Q. First of all, we need to find the matrix of first of all we need to find the inverse of matrix B. जल्दी से मुझे inverse of matrix B की वैल्यू निकाल कर बताओ. अब्दुल रहमान हसन, अब्दुल रहमान खान, जल्दी से बेटा मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकाल कर बताओ मुझे. एक मिनट. निकाल लोगे मैट्रिक्स, ये बता दो बस इन्वर्स. सर सिर्फ बी वाले का निकालना है ना? हाँ सिर्फ बी का इन्वर्स मान लो. हाँ जी, क्या आंसर आया? सर वो क्या तो एडजस्टमेंट बोलते हैं सर? एडजॉइंट. अच्छा.
रहमान सोहेल, इनवर्स निकाल लो बेटा। यस सर, कर रहा हूँ सर। Be like this. सर इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे एडजस्टमेंट में? तुम्हारा एडजॉइंट, तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? ध्यान आ जाओ -6। बेटा, ए का इनवर्स लेना है, तुम बी का इनवर्स तो नहीं ले रहे कहीं? मैं तो भी का ले रहा हूँ बेटा सवाल में राइट डाउन द सर। इनवर्स, राइट डाउन आपने द, भी कहा था यार, क्वेश्चन 9 का भी। सवाल में ए लिखा हुआ, सवाल में राइट डाउन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा हुआ। भी का कर ली। खैर चलो, करना ए का था। अब मैं जरा सवाल समझा दूं तुम्हें जल्दी से। इधर देखो बेटा जरा गौर से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यू नीड टू फाइंड द ए पी इक्वल्स टू बी, ये मालूम करना है। सही। तुम्हारे पास p की वैल्यू नहीं है तो a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय। डिवाइड हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड नहीं होते, तो मैं a को जब न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, a इनवर्स हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, p इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब्दुल रहमान सोहेल, यस सर। ये समझ में आया? हमें ए पी इक्वल्स टू बी को यूज करते हुए p की वैल्यू निकालनी थी, तो p बराबर हो गया b अपॉन a के। क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड नहीं होते तो ये a ऊपर आकर a इनवर्स बन जाएगा। अब तुमने a इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है और उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारे पास मैट्रिक्स p की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? ये कर लोगे खुद से। अब्दुल रहमान खान, जी अब्दुल रहमान जी सुहेल, सर। समझ जी आया जी ये जी। किस तरीके से करना है? आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 इस जैसे जितने भी सवाल हैं, अब जैसे इसको देखो, ए पी इक्वल्स टू बी मौजूद है, ए वहां जाकर ए इनवर्स हो जाएगा, सो पी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मतलब आपने ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना है। सिमिलरली इस वाले सवाल में भी तुमने यही करना है, क्यू की वैल्यू भी ए इनवर्स बी के बराबर होगी, मतलब जो पी की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। ठीक है? ओके। बस एक फर्क आ जाएगा, जरा गौर से वो फर्क देख लो। इधर लिखा हुआ है ए पी इक्वल्स टू बी, तो ए वहां जाकर ए इनवर्स बी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्यू ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए बाद में लिखा हुआ है, तो वहां बी इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले पार्ट में तुम ए इनवर्स को बाद में लिखो। ये बात समझ में आई? अब्दुल रहमान सुहेल और जी अब्दुल जी रहमान जी। खान, पार्ट 1 में लिखा हुआ है ए पी इक्वल्स टू बी, ए पहले लिखा हुआ है, तो ए वहां जाकर जब ए इनवर्स बनेगा तो बी से पहले लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 में क्यू ए लिखा हुआ है, मतलब ए बाद में लिखा हुआ है, तो अब जब ए वहां जाएगा तो ए इनवर्स बाद में आएगा। समझ आई ये चीज? जी सर। कर लोगे इसको सॉल्व? जी। श्योर। पक्का? चलो चलो। बेटा, इंशाल्लाह ताला सैटरडे के दिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर आखिरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। कोई सवाल हो जहन में तो पूछ लीजिए।